नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, আমি হচ্ছি অনিমেষ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के जो सितारा है ना, हम सबके फेवरेट है। আমার আমার খুবই প্রিয় এন্ড হি ইজ আ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যাক্টর, নান আদার দ্যান আমাদের সবার প্রিয় সুদীপ মুখার্জি। একটা সুদীপ মুখার্জি আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন রবিবার কি শাম সিতারো কে নাম में। সুদীপ দা, ফার্স্ট অফ অল ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইওর 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম। কেমন আছো দাদা? আমি খুব ভালো আছি। আমিও 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম এর সমস্ত শ্রোতাকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। গুড ইভিনিং। সানডে, সো চায়ের সঙ্গে আড্ডা। হ্যাঁ, একটা হয়ে যায়, একটা ছোট্ট আড্ডা হয়ে যায়। সুদীপ দা, তোমাকে একটা কথা বলি, মানে অনেকদিন ধরে আমি রিকোয়েস্ট পাচ্ছিলাম, সবাই রিকোয়েস্ট করছিল সুদীপ দাকে কবে আমরা শোতে পাবো। সুদীপ दा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फैंस जानना चाहते हैं, ভিউয়ার্সরা জানতে চায়। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি পিছনে অনেকগুলো মাছ আছে দাদা, একটা অ্যাকুয়ারিয়াম, একটা সুন্দর একটি অ্যাকুয়ারিয়াম দেখতে পাচ্ছি। কটা হ্যাঁ, মাছ আছে? গোল্ড ফিশ দেখতে পাচ্ছি, আই থিঙ্ক গোল্ড ফিশ। দিজ আর অল প্যারট। ওকে ওকে ওকে। তো কটা ফিশ আছে টোটাল? এখানে এখন 6 জন আছে। এদিক ওদিক ঘুরে ছজন। বেড়াচ্ছে। না, 4 জন আছে, 2 জন মারা গেছে। এই আগের এই দিন এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা পরিষ্কার করতে গিয়ে ইলেকট্রোকিউটেড হয়ে 2টো ফিশ মারা গেছে, ওহো। আনফর্চুনেটলি। তো মানে যে ছেলেটি পরিষ্কার করে একটুখানি নেগলিজেন্ট ছিল, তো ওয়্যারটা হ্যাঁ, জলের মধ্যে পড়ে গেছিল। যা। দ্য ফিশ গট কানেক্টেড টু দ্যাট, এন্ড তো 2 জন মারা গেছে। এছাড়াও আমার 2 জন বন্ধু, আমার 2 সন্তান আমার পাশে আছে, আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি। আহ, ইনি হচ্ছেন ব্রিজি, আহ, ওয়াও। আর হাই। ইনি চলে হচ্ছেন যাচ্ছে, উঠে চলে গেল। ইনি হচ্ছেন জুডো। হাই জুডো। জুডো। হাই জুডো। হ্যাঁ, ও, টু মাচ। এই জুডো। মানে ইন্টারভিউ স্টার্টিং এত ভালো, এত সুন্দর হয়েছে না দাদা, টু মাচ। So you have আমার a lot আছে of friends টিআরপি। around. হ্যাঁ, টিআরপি আমার একদম হাই যাচ্ছে। ও, সুপার। হ্যাঁ, সব বন্ধুদেরকে পেয়ে গেছি, মাছ পেয়েছি। 2020 দাদা, যেরকম তুমি বললে দুটো মাছকে আমরা হারিয়ে ফেললাম, অনেক অনেক জানাশোনা লোকদেরকে আমরা হারিয়েছি। It's a tough time 2020 going has on right been, now. yes, 2020 has changed our life philosophically and personally too. হুম, Philosophically, আমি অন্তত যেটা রিয়েলাইজ করেছি যে nothing is important. Nothing is important other than your existence and your friends' existence. People, you, and 2020 lockdown has taught me, আমাকে শিখিয়েছে যে ফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া নয়, ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট, ফিজিক্যাল কানেকশন, মেন্টাল কানেকশন উইথ পিপল, যেটা আমরা ছোটবেলায় দেখতাম, বন্ধুরা হ্যাঁ, একসঙ্গে বসে আড্ডা মারা। এখন তো দেখা যায় যে আমরা 2 জন বন্ধু কোথাও হয়তো চা খেতে গেলাম, আমি আমার ফোনে, সে তার ফোনে। আমরা সামনাসামনি যে বন্ধু আছে তাদেরকে কানেক্ট না করে ফোনের পিছনে যারা বন্ধু আছে, যাদেরকে আমরা একদম ভার্চুয়াল ঠিক ফ্রেন্ডস বলছো। বলছি, তাদেরকে বেশি হুম, ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। তো হুম, সেটার থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা আমাদের সামনে আছে, তাদেরকে আঁকড়ে ধরা। বিকজ উই হ্যাভ লস্ট সো মেনি পিপল, সো মেনি নোন পিপল, সো মেনি ক্লোজ পিপল। তারা হয়তো সবাই করোনার জন্য চলে যায়নি, কিন্তু করোনার সাইকোলজিক্যালি এমন ভাবে মানুষদের এফেক্ট করেছে, তাদের এক্সিস্টেন্সকে এফেক্ট করেছে, যে উই হ্যাভ লস্ট লট অফ পিপল, লট অফ নোন পিপল, লট অফ ট্যালেন্টস, লেজেন্ডস, অ্যান্ড মানে বিষে বিষ ছড়াছড়ি আর কি। মানে মৃত্যু মিছিল লেগে গেছে। করোনা তো ডেফিনেটলি আছে, কিন্তু তার বাইরে গিয়েও মানে সাইকোলজিক্যালি মানুষ এতটাই ডিপ্রেশনে চলে গেছে যে তাদের লড়াই করে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। correct, So we একদম have ঠিক, lost একদম। so many people. It's a huge loss for humanity, humankind, হুম, you know. ট্রু, But একদম ঠিক বলেছো। on the contrary, on the other hand, আমরা কিন্তু নেচারকেও অনেকটা ফিরে পেয়েছি। ট্রাস্ট মি, আমার ট্রু। বাড়ির আশেপাশে আমি এমন অনেক পাখি দেখতে পাচ্ছি যেগুলোকে আমি বহু বছর কলকাতার আকাশে দেখিনি। হ্যাঁ, রাইট। হুম, এমন বিভিন্ন জায়গা আমি দিল্লিতে শুনেছি, একটু আউটস্কার্টসে বা মুম্বাইতে একটু আউটস্কার্টসে, একটু যখন পাহাড়ি এলাকা শুরু হচ্ছে সেখানে লেপার্ডস বেরিয়ে আসছে, হরিণ বেরিয়ে হুম, আসছে, আরো অনেক অ্যানিমালস বেরিয়ে আসছে। তারা নেচারটাকে, চড়াই পাখি আমি দেখতে পেয়েছি। আগে হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলায় ফ্ল্যামেঙ্গো পাখি দেখতে ছোটবেলায় পেতাম, দেখতাম। হ্যাঁ, 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 ফিঙে দেখতাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ,
এই পাখিগুলোকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি আবার বিকেল বেলা চড়াই পাখির এই টিয়া পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে দেখেছি আমি সন্ধ্যাবেলায়। রাইট। So nature has a way of hitting back, you know. You twist the nature and nature will twist you, करेक्ट करेक्ट। you know. So it is very important to live a balanced life. हम लोग एक साथ रहने का जो बचपन से सीखे थे ना कि जी। एक साथ बड़ा हो रहा है, यूनिटी में दम है, बिल्कुल। वो हम लोग काम में नहीं लगता। हम लोग बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं। ये जो हाँ। वर्चुअल रियलिटी हम लोगों को दिया जा रहा है ना, तो हम लोग बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं, बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो प्रकृति जो है उसने ऐसा माहौल बना दिया कि हम लोग वापस एक साथ सहावस्थान जिसे कहते हैं जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल सही आपने आज बात हम की है। लोगों और जैसे हाँ একদম ঠিক বলেছো, বলো না হ্যাঁ প্লিজ বলো। তো আমরা একসঙ্গে থাকতে বাধ্য, কো এক্সিস্টেন্স ইজ মাস্ট, এটা কিন্তু লকডাউন আমাদের শিখিয়েছে। আজকে করোনা ভাইরাসের এই এফেক্টটা কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে ইউ জাস্ট ক্যানট লিভ অ্যালোন। কারেক্ট কারেক্ট, একদম ঠিক বলেছো সুদীপদা। আর এই করোনা ভাইরাস আর কোভিড-19 সবাইকে একটা সেম প্ল্যাটফর্মে নিয়ে চলে এসেছে। কারোর জন্য এরকম নাকি একদম। কেউ উপরে আছে কেউ নিচে, সবাই একই প্ল্যাটফর্মে আছে। ওকে, শো মাস্ট গো অন। একটু সুদীপদা তোমার থেকে জানতে চাইবো, जैसे कि आपने बचपन की बातें की, ছোটবেলার একটু আমাদের সাথে একটু কিছু ইনসিডেंट शेयर करो ना, যেটা আমি খবর পেয়েছি कि आपने हिंदी से पढ़ाई की थी और बंगाली जो है आपने बुक्स पढ़ के आपने सीखा है। একটু ছোটবেলায় কেমন জি, ছিলেন? আর্মি ফ্যামিলি से बिलोंग करते हैं সুদীপদা, একটু বলো প্লিজ। জি, মাই ফাদার ওয়াজ ইন আর্মি। আমার বাবা আর্মির ডাক্তার ছিলেন। তো ন্যাচারালি আমার পড়া শুরু হয় প্রথমে তো মন্টেসরিতে গ্রিনউড কিন্ডারগার্টেন বলে একটা স্কুলে আমি যেতাম। I don't remember much about studies. I used to play there a lot. ओके। So that's what I remember. पैदल चल के जाते थे गली गली से। एक टूटा हुआ दीवार था जिसके अंदर से एक छेद था, बड़ा सा गड्ढा सा था, उसके अंदर से जी। निकल के मैं स्कूल पहुंचता था। तो मेरे साथ हमारे ओके। घर में जो मेरे काम करता था एक बंदा था, वो साथ में जाता था। तो वहीं से जाते थे वहीं से आते थे, इतना मुझे मालूम है ग्रीनवुड किंडरगार्टन का। उसके बाद हम 6 महीने के लिए हिंदी हाई स्कूल में भर्ती हुए। तो पता नहीं somehow it did not gel with me. मैं रोज रोता था वहां पे। फिर पापा ले जाके मुझे सेंट्रल स्कूल फोर्ट विलियम, उस समय सेंट्रल स्कूल फोर्ट विलियम में हुआ करता था, तो सेंट्रल स्कूल में भर्ती कर दिया। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था। आप जानते हैं उस समय केंद्रीय विद्यालय हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजी में सिर्फ साइंस और इंग्लिश पढ़ाया जाता था, बाकी पूरा जितने सब्जेक्ट थे वो हिंदी में पढ़ाया सब हिंदी में होते थे। जी, सब हिंदी में होते थे। तो बचपन से ही मैंने हिंदी में पढ़ा था। लेकिन घर में एक माहौल था, मेरी एक मौसी मतलब माँ की फ्रेंड थी, सरस्वती मासी। सरस्वती मासी, हाँ। वो आती थी घर में এবং সত্যিকারের যদি বলা হয় না সরস্বতী মাসিকে আমি মা সরস্বতীর অবতার বলতে পারি। शी वाज এত স্নিগ্ধ देखते, इतना सुंदर, इतना ग्रेसफुल दिखने में थी। जी। और हमेशा जब वो आती थी तो कहानी का किताब लेके आती थी। ओके। বাংলা গল্পের বই। আমার না খুব ছোটবেলা থেকে, মানে আমি বলছি নার্সারি কি 1 থেকে আমার এই গল্পের বই পড়া অভ্যেস, এবং এই গল্পের বই পড়ে পড়ে আমার বাংলা শেখা। আমি লিখতে পারতাম না till I left my job and came down to Calcutta. My handwriting was very poor. I still have a very childish बांग्ला हाथेर लेखा। लेकिन मैं पढ़ता था এবং और बोलता था। my বাংলার যে vocabulary আমার সেটা অনেকের থেকে অনেক strong, because I have read those story books from a very childhood days. Correct. So I was lucky to get that Bengali language and Hindi language, two probably the richest languages in the world. Arguably two most rich language in the world. একটা हिंदी तो आप जानते हो कि उर्दू अरबी फारसी मिला हुआ है, तो कुछ उसका एसेंस है। और बांग्ला में भी तो देवनागरी का एसेंस है एकदम। और लिटरेचर इज सो रिच, सो इन डेप्थ।
कि मुझे सीखने में कोई मेरा जितना भी ज्ञान है, जो भी नॉलेजेस है, जितना जानकारी है, मैंने कहानी की किताब से सीखी। क्या बात, क्या बात। সুপার দাদা, সুপার। আমার মনে হয় অনেক তোমার ফ্যান্সরা এটা হয়তো জানতো না, কিন্তু এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সুদীপ দা ने बंगाली जो है वो बुक्स पढ़ के सीखी है, बहुत ही अच्छी बात है। সুদীপ দা, ছোটবেলা থেকে আবার তুমি নাটক, তোমাদের সরস্বতী পুজোতে নাটক হতো, ইভিনিং এ তোমরা হ্যাঁ, নাটক আমি করতে, সেখান থেকে একটা এক্স্যাক্টলি থিয়েটারের একটা নলেজটাও তোমার অনেকটা ইমপ্রুভ করলো, সেটা একটু যদি বলো প্লিজ। सी इट इज नॉट दैट नॉलेज विच हैज जो मुझे मिला, वो जी। माहौल मिला, वो ओके। कुछ करने का। देखो, मेरा नाटक, ड्रामेटिक्स या स्पोर्ट्स जो भी है, मैंने जो भी कुछ किया है, वो पढ़ाई से, फॉर्मल पढ़ाई से दूर रहने के लिए किया है। अच्छा। ठीक है ना? तो ओके। हाँ, क्योंकि चलो हम कम से कम फादर को तो बोल सकते थे कि बाबा, যে আমি এই কাজ করছি, আমি তো এখন मैं ব্যস্ত वो, আছি, হ্যাঁ हाँ, আমি वो এখন, स्कूल হ্যাঁ का थिएटर है, ক্রিকেট स्कूल का হচ্ছে কি। ड्रामेटिक्स है, मुझे जाना है कि स्कूल का स्पोर्ट्स है, उसमें तो पार्टिसिपेट करना है, कि स्कूल में कब्स हो रहा है उसमें तो पार्टिसिपेट करना है, तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होने से कोई दिक्कत नहीं है। হ্যাঁ। और सरस्वती पूजा में, সরস্বতী মাসির বাড়িতে যেটা হতো, সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যাবেলায় ওখানে আমরা অঞ্জলি দিতে যেতাম সরস্বতী পুজোর সকালবেলায়। তখনও আমাদের স্কুলে সরস্বতী, মানে যেহেতু সেন্ট্রাল স্কুলে সরস্বতী পুজোটা হতো না, হুম। তো সরস্বতী মাসির বাড়িতে পুজো হতো, আমরা সকালবেলা চলে যেতাম সেখানে, গিয়ে সারাদিন সরস্বতী মাসির বাড়িতে থাকতাম, অঞ্জলি টঞ্জলি দিয়ে। সেখানে আমাদের সরস্বতী মাসি নিজে স্ক্রিপ্ট করে হাতে দিয়ে, সোমনাথ কাকা, মানে সোমনাথ দাদা ছিল সরস্বতী মাসির ছেলে, সোমনাথ দাদা নাটকটা লিখতো, 2 পাতার নাটক হতো। তো আমাদের বিভিন্ন ক্যারেক্টার ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হতো, দুপুরবেলা খিচুড়ি টিচুড়ি খেয়ে আমরা রিহার্সাল করতে আরম্ভ করতাম, রিহার্সাল শুরু রেডি হতো, ওকে। করতাম। আর হ্যাঁ, আর সন্ধ্যেবেলা ওই একটা, তখন প্রত্যেকের বাড়িতে চৌকি চৌকি থাকতো, बड़ा सा लकड़ी का, वो है ना, प्ले, जी 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 वो चौकी कहते थे हम लोग, तो जी। उसके ऊपर हम लोग प्ले करते थे। वो स्टेज बनता था। वो स्टेज बनता था, मंच আমরা যেটাকে हाँ বলি। हाँ हाँ। तो कहीं पे इसका इफेक्ट तो रह जाता है। करेक्ट। हाँ। उसके बाद ऐसा हुआ, देखो हम लोगों के घर में बच्चों के लिए सिनेमा देखना वॉज अ सैक्रिलेज। हॉल में जाके पिक्चर नहीं देखा जाएगा, ये घर का सिस्टम था। तो अब मेरे फादर का पोस्टिंग हो गया बड़ौदा में। अब बड़ौदा में मैं गया पापा के साथ, मेरे 2 बड़े भाई थे, वो लोग हॉस्टल चले गए, मैं चला गया पापा के साथ बड़ौदा में, जी। मैं, पापा, मम्मी। अब बड़ौदा में ऐसा सिस्टम था कि वहां पे ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, और इस ओपन एयर थिएटर में हर शनिवार को हिंदी पिक्चर दिखाया जाता था, और ऑल्टरनेट मंडेज अंग्रेजी पिक्चर दिखाया जाता था, और 3 महीने छोड़ छोड़ के शायद बंगला पिक्चर दिखाया जाता था एक एक, या क्लासिक कोई फिल्म दिखाया जाता था 3 महीने में एक बार। जी। तो अब ऐसा होता था, शनिवार को जो है जितने भी ऑफिसर्स, फैमिली थे, सब लोग जाते थे, और ये सिस्टम था, कोई इसको स्किप नहीं कर सकता था। तो हम लोग भी बच्चों का गैंग मिलके चले जाते थे, पापा रोक नहीं पाते थे हम लोगों को। ओके। तो यहां से शुरू हुआ मेरा पिक्चर देखने का सिलसिला। और अब ऐसा हुआ, उस समय हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारे लिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों हीरो हुआ करते थे, हेमा मालिनी और रेखा दोनों हीरोइन हुआ करती थी, सबसे पॉपुलर और सबसे जी। तो अब घर में आके ऐसा होता था, मैं जब भी बाथरूम जाता था, उस बाथरूम में बैठ के मैं अपना फिल्म बनाया करता था। अरे वाह। इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रेखा, हेमा मालिनी, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा और मैं हुआ करता था, और मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, ये फिल्म में बहुत एक्शन होता था, रोमांस का तो पता नहीं, रोमांस भी होता था शायद, लेकिन एक्शन जरूर होता था। हाँ, और लास्ट में अमजद खान और प्रेम चोपड़ा बहुत मार खाते थे हमारे हाथ। जी, क्या बात है। ठीक है ना? तो ये अपना फिल्म बनता था, और रोज माँ से डांट पड़ती थी क्योंकि मैं 1 घंटा बाथरूम में निकालता। वहां तो एक्टिंग हो रही है, पूरे फिल्म चल रही है। हाँ, पूरा टोटल फिल्म चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका तो इफेक्ट रह जाता है, नस नस में थोड़ा सा घुस गया था, मालूम नहीं, कोई सबकॉन्शियस माइंड में फिल्मों का चक्कर घुस गया था, जो कि बहुत सालों बाद नौकरी छोड़ने के बाद, नौकरी छोड़ दिया 1999 में,
तो वो जो कीड़ा जो बचपन में घुसा था, वो कीड़ा कहीं पे बड़ा हो गया और फिर धकेल दिया मुझे फिल्म इंडस्ट्री में 1999 में। आज जाके 2020 साल में मेरे 21 साल हो गए हैं नवंबर में फिल्म इंडस्ट्री में। তো স্যার এই कैसे শুরু हुआ সুদীপ দা, মানে তুমি ঠিক আছে চাকরি ছাড়লে তারপর মানে কি ভেবে নিয়েছিলে আমাকে এবার অ্যাক্টর হতে হবে, অ্যাক্টিং করবো, বা অডিশন কি করে দিলে, कैसे শুরু কিয়া नहीं আপনি? नहीं আমি বলছি অনিমেষ, আমি না ऑटोमेटिकली जा सुदीप दा का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है और शायद वो कनेक्ट अभी एक बार फिर से होंगे। वेल, रविवार के शाम सितारों के नाम में हमारे सॉन्ग राइट नाउ আছে नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर সুদীপ মুখার্জি। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनके बारे में जान रहे। সুদীপ দা আরেকবার আমাদের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে গেছেন। সুদীপ দা শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ দাদা বলো। मेरा एक बच्चा आके यहाँ पे ठेल दिया था। मेरे जो दोस्त दोनों देखे थे ना, जूडो और वो, उसने नाक मार दिया था तो मैं निकल गया था। ওকে। তো এরকম হয়েছে কি আমি না সাডেনলি কিছু করিনি। হ্যাঁ, আমি গ্রুপ থিয়েটার করতে আরম্ভ করি 1988-89 থেকে, যখন আমি কলেজে ছিলাম। তারপরে দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি স্মল গ্রুপ উই হ্যাড, করদেলিয়া নাম ছিল সেই গ্রুপটা। তারপরে ওই কোনো কারণে ওই গ্रुपটা ভেঙে যায়, बिकॉज वी वर ऑल स्टूडेंट, पैसा नहीं था। हम लोग वो वन एक्ट प्लेज करते थे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, उसमें से जो 2-4 पैसा अपना ट्यूशन का पैसा रहता था, ये सब लगा के छोटा छोटा प्लेज करते थे। धीरे धीरे किसी कारणवश वो ग्रुप टूट गया। फिर 1991 में मैं कैलकाटा परफॉर्मर्स ज्वाइन किया, तोमाल रायचौधरी डायरेक्टर थे। तो वही बात चलता रहा कि भाई पढ़ाई से दूर रहने के लिए जो भी करना है करो। तो आई यूज टू रो, मैं रोइंग करता था, कॉम्पिटिटिव रोइंग करता था। तुम जानते हो अनिमेश, मैं 1986 से लेकर 1995 तक इतने 10 साल मैंने रोइंग किया है। उसमें से 7 साल मैंने नेशनल्स किया है, इंटरनेशनल रिगाटाज 8 साल से ऊपर मैंने किया है, बहुत सारे इंटरनेशनल रिगाटाज किए हैं। कुछ मैं तुमको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कुछ प्राइजेस भी। जी प्लीज, हम देखना चाहेंगे, देख पाओगे थोड़ा बहुत है ऊपर यहाँ पे। बहुत सारे प्राइजेस मैंने दे दिया है मैंने, क्योंकि घर में रखने का जगह नहीं था। तो और कुछ प्राइजेस मेरे जो है रखा हुआ है, संदूक में रखा हुआ है। जो भी है आंखों के सामने मैं तुमको दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत इधर देख सकते हो। These are all you know, this was in Colombo, this was in 1993 probably. Excellent, excellent. Okay, Colombo Rowing Club. Colombo Rowing Club, which was founded in 1864. This is the second oldest club in Asia. The oldest one was CRC, which was in 1858. Okay. একটু নেটওয়ার্কে একটু ইস্যু হয়েছে। সুদীপদা আমাদেরকে ট্রফি গুলো দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সুদীপদা, ট্রফিজ রাখা রয়েছে, দেখতে পারো। ঠিক আছে, ধুলো পড়ে আর আরো অনেক সিন্ধুকের মধ্যে আছে। এই तो रेगाटा, तो ये रोइंग करता था मैं। तो रोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फेज in my life, because you know, whatever I am, the discipline, the identity, being Sudeep Mukherjee, my rowing sport, this rowing, it is a very disciplined sport. It takes a lot of courage, endurance, strength and skill to be a competitive rower, truly competitive rower. आप अगर ओलंपिक्स का हिस्ट्री देखो कि वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप का हिस्ट्री देखो, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो प्रोफेशनल थे नहीं, एमेचर स्पोर्ट था ये। लेकिन इट गिव्स अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर। आप अपने आप को पहचानते हो। ये जो हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन आज सुदीप मुखर्जी का बना हुआ है कि आज भी मेरे एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कभी और दूसरा कोई बीमारी मेरे को छू नहीं पाया, क्योंकि मैं इस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ था। आज सुदीप मुखर्जी जो सुदीप मुखर्जी बना है,
एक्टर, उसका बेस कहीं पे वो रोइंग क्लब से शुरू हुआ है, क्योंकि उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उसने मुझे वो रोइंग ने मुझे मेरा आइडेंटिटी क्रिएट किया। करेक्ट। अदरवाइज आई वॉज अ वेरी इनकॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट पर्सन। ओके। मेरे तो भैया थे, मैं उनके शैडोज में बड़ा हुआ। तो सुदीप मुखर्जी कुछ बन सकता है। सुदीप मुखर्जी এই তো কেটে গেল আবার, আবার কেউ এসছে। তো দারুণ একটা আড্ডা জোন, আড্ডা পিরিয়ড এখন চলছে, আড্ডা সেশন চলছে, যেখানে আমাদের সঙ্গে सुदीप दा আছেন, वेरी टैलेंटेड एक्टर सुदीप मुखर्जी। ওনার साथे আমরা আড্ডা মারছি और बहुत सारी चीजें वो बता रहे हैं और कितनी इंटरेस्टिंग चीजें वो बता रहे हैं। जैसे कि रोइंग के बारे में उन्होंने बताया, अपने बचपन के बारे में बताया, थिएटर कैसे उन्होंने शुरू किया वो बताया, नौकरी छोड़कर वो एक्टिंग में आए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। सुदीप दा আবার আমাদের সঙ্গে রাইট নাও वन আছেন। सेकेंड। সুদীপ দা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সুদীপ দা দেখতে हाँ, পাচ্ছি, বলো বলো বলো। तो सुदीप मुखर्जी एज एन इंडिविजुअल वॉज अ वेरी इनकॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन उसका अपना पहचान तैयार हुआ, बना रोइंग क्लब से। तो यही सुदीप मुखर्जी कहीं आगे चल के एक्टर सुदीप मुखर्जी बना, क्योंकि वो सुदीप मुखर्जी रेगुलर नौकरी का सुदीप मुखर्जी करने वाला सुदीप मुखर्जी नहीं रहा, उसको कुछ अलग करना था। करेक्ट। उसने नौकरी की, जितना दिन नौकरी किया उसने सिंसियरली नौकरी की। फिर उसने सोचा 1998 में 95 में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मेरा रोइंग छूट गया था, एक्सरसाइज वगैरह, तो मेरा चलने फिरने का एक प्रॉब्लम था। इट वाज अ बिग एक्सीडेंट, लॉरी का एक्सीडेंट था। आई वाज हिट बाय अ ट्रक, ऊपर से नीचे का बहुत बड़ा डैमेज हुआ, पैर टूट गया, टूट के टिबिया फिबुला, घुटनों के नीचे से पैर के पत्ता तक एकदम हालत खराब हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो उस समय शायद मैं प्रोफेशनल एक्टर बन सकता था, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था ठीक से। हालांकि मेरा ग्रुप थिएटर चल रहा था, मैं कलकत्ता परफॉर्मेंस में परफॉर्म कर रहा था, यहां तक कि मैं क्रच लेके भी परफॉर्म किया शोज में, लेकिन प्रोफेशनल अभिनय करना था, ये मेरे दिमाग में आया 1998 में, जब मेरा लास्ट ऑपरेशन हुआ पैर का। आई वॉज स्टडी, मेरे बॉस जो थे वो जानते थे कि मैं चाहता हूं, मैं अभिनय करना चाहता हूं। 1998 से मैंने कॉन्क्रीट, आई वॉज 30 years old, एंड उस समय ऐसा होता था, देखो 30 साल की उम्र में लोग सेटल हो जाते हैं जी। 30 साल में मैंने नया कुछ करने का सोचा, शुरू किया। करेक्ट। 31 साल की उम्र में 1999 में मैंने नौकरी छोड़ दी कि मैं प्रोफेशनल अभिनय करूंगा, मुझे प्रोफेशनल अभिनेता बनना है। तो इट वॉज नॉट अ चांस, इट वॉज नॉट बाय चांस, बट बाय चॉइस I decided to change my profession and get into films, get into professional acting, which was my passion. कहीं बचपन में शुरू हुआ था ये पैशन, एमेचर ड्रामेटिक्स करते करते, स्कूल में ड्रामेटिक्स करते करते, कहीं पे बाथरूम में फिल्म तैयार करते करते, फिल्म देखते देखते कहीं पे नस नस में घुस गया था शायद। So it was a dream come true, and by God's grace, आप लोगों की दुआ थी, ईश्वर का कृपा था कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ओके। I started getting offers after 2 or 3 small projects. I started getting lead roles in serials. हालांकि फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए थे। बड़ा रोल मैंने 2005 में पहली बार किया, लेकिन सीरियल्स में मैं मोर और लेस 2-3 छोटे छोटे काम करने के बाद मुझे लीड रोल्स मिलना चालू हो गया, मिल गए थे, एंड आई बिकेम and I became popular. I became popular among people. So I was lucky. उसके बाद जर्नी, हाँ उसके बाद जर्नी शुरू हुई और एक के बाद एक अच्छे अच्छे रोल्स हैं। हुई और 21 साल के बाद I am sitting here giving an interview to my friend Animesh, who was my colleague too.
হ্যাঁ আমরা একসাথে আমাদের এক্স এক্স রেডিওতে আমরা रेडियो একসাথে কাজ করেছি रेडियो थे। আর तुम সুদীপ দা जानते हो निमेश, আমাদের मैं स्टेशन वॉइस को स्टेशन वॉइस ছিলাম पूरा ওখানকার। पूरा पूरा हमारा जो एक्स स्टेशन था वहां पे सुदीप दा के ही वॉइस जाते थे, वॉइस ऑफ द स्टेशन होता है और वो सुदीप दा की आवाज थी क्योंकि माशाल्लाह उनकी आवाज काफी अच्छी है और ये भारी आवाज जो है लोगों को बहुत पसंद आई और वो स्टेशन के हिट होने में सुदीप दा का ही बहुत बड़ा हाथ है। आज वो स्टेशन अच्छा कर रहा है और उसमें सुदीप दा का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि सुदीप दा ने अपना वॉइस ओवर दिया था। সুদীপ দা তারপর তো জার্নি শুরু হলো, আমরা অনেক অনেক বছর একসাথে কাজও করেছি। তো সুদীপ দা আমাকে একটা কথা বলো, आप 21 ইয়ার্স से आप इस इंडस्ट्री में हैं और সুদীপ দা हमेशा से बहुत ही डाउन टू अर्थ रहे हैं। আমি যখন তোমার সাথে কথা বলেছি বা অন্যরা কথা বলেছে बहुत आपने अच्छे से उनके साथ आपने बातें की है। तो इतने डाउन टू अर्थ आप कैसे हैं? সুদীপ দা की एक क्वालिटी जो क्या है সুদীপ দা में जो सबको अलग करती है সব অন্যদের থেকে यार তোমাকে আলাদা করে দেয়? ये तो आप लोग कह सकते हो, पता नहीं आप डाउन टू अर्थ किसे कहते हो। आप मेरे से बात करते हो तो मैं भी आपसे बात करता हूं। अगर मैं डाउन टू अर्थ हूं तो आप भी डाउन टू अर्थ हो। जी एंड हम लोग नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं तो लोग शायद इसे डाउन टू अर्थ कहते हैं। मैं अब जी नॉर्मल तो हूं नहीं, मेरा तो जी भेजा खराब है नहीं। जी। तो वी टॉक नॉर्मली, यू माय फ्रेंड अनिमेश। लेकिन तो सुदीप दा ऐसा क्यों होता है कि जो लोग 1 साल 2 साल इंडस्ट्री में रहते हैं, अगर मूवी इंडस्ट्रीज की बातें करें तो वो अपने आप को कुछ ऐसा समझने लगते हैं कि उनको लगता है कि उनसे अच्छा और कोई नहीं, এরকম হয় অনেকজন আছে। ওরা মনে করে আমি আই এম দি বেস্ট, আই এম দি बेस्ट। ये तो मेरे लिए, सी आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ or I'm not dynamic enough to get into the depth of these things, you know. जी I'm too lazy to think in that way. हाँ, हाँ, I want my life to be very easy, you know, simple, easy. I am not जी dynamic enough. मैं थोड़ा आलसी हूँ तो इतना सोच भी जी नहीं पाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जी ज्यादा सोचने के लिए बहुत डायनामिक होना बहुत जरूरी है। आलसी आदमी के लिए ये सब नहीं है। ओके सुपरस्टार बनना आलसी आदमी के लिए ठीक नहीं है। तो ओह हम लोग अच्छा ठीक है भाई, रोटी दाल चावल हो जाता है, चल जाता है। हो मैं थोड़ा जाता मच्छी मुझे पसंद है तो माछ खाता हूँ जी मैं। तो जी थोड़ा सा अच्छा खाना। और जी क्या है, लाइफ तो यही है। बच्चे बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, कोई अच्छा स्कूल में भर्ती हो जाएगा, उनका लाइफ बन जाएगा, वो लोग जी अपना लाइफ देख लेंगे। 18 साल तक मेरा देखने का प्लान है, उसके बाद छोड़ जिम्मेदारी देंगे जी उनको। भाई अपना घर बनाओ, जिम्मेदारी है। बिल्कुल तो तब तक बिल्कुल। जैसा जैसा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो उतना मेरा दिमाग भी नहीं है, मैं थोड़ा बुद्धू किस्म का आदमी हूँ। तो ऐसा है। ओके तो सुदीप जब खाने की बातें हो रही है तो आपके फेवरेट डिश क्या है? माछ तो फेवरेट है ही, और क्या क्या चीजें जो बहुत आपको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है मूढ़ी, झाल मूढ़ी। और अच्छा शाम को जो मेरा लास्ट खाना है वो मूढ़ी। 95% ऑफ द डेज आउट ऑफ हर मेरा मूढ़ी चलता है। मूढ़ी मूढ़ी ओके बादाम, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ा ज्यादा करके हाँ थोड़ा हाँ सरसों का तेल, नमक, वाह प्याज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिर्ची, हरी मिर्ची ज्यादा, ज्यादा बादाम, थोड़ा सा मूढ़ी और नमक थोड़ा ज्यादा और सरसों का तेल। ये मेरा हाँ हाँ देखो मुंह में पानी आ रहा है। दिस इज माई आ स्टेपल रहा है डाइट आ रहा है थ्रू आउट सही द में ईयर यार, सही में ठीक है ना। तो सही में ये आ रहा 95% ऑफ माई साल में मेरा यही चलता है। ये है। मेरा ओके बहुत फेवरेट, आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ दिस। और मछली, आई कैन हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ मछली एनी टाइम ऑफ द डे। ओके और सिंपल खाना, पंजाबी खाना बहुत जी पसंद है मुझे। मुझे पता नहीं, चाइनीज कॉन्टिनेंटल उतना उतना भी कोई खास पसंद नहीं है, ठीक है, खा जी लेता हूँ कभी कभार। जी लेकिन भारतीय खाना मुझे बहुत पसंद। সিম্পল ফুড পছন্দ क्या होता है? अच्छा दादा देख रहा हूँ একটা मैं, ডিশ ও या একটা একটা কোনো সবজি বাকি जो आपको पसंद नहीं है? मूली मुझे पसंद नहीं है। मूली पता नहीं, मैं खा नहीं सकता हूँ किसी भी तरह से। जी जी मूली से दूर रहते हैं बचपन से ही सुदीप दा। मुझे ओके पसंद सुदीप नहीं है। जी हाँ क्या बात है क्या बात है। ओके सुदीप दा मैं अब आपको एक टाइम मशीन देने वाला हूँ, एक डिवाइस देने वाला हूँ जिस टाइम मशीन में बैठकर आप पास्ट में जाएंगे। তোমার आपके हाँ जन्म के पहले भी आप जा सकते हैं या फिर बचपन या फिर कभी एक टाइम में 30 মিনিট তুমি পাবে সেখানে গিয়ে তুমি বসে আরামসে দেখতে পারো, যা বলার আছে বলতে পারো, কোথায় তুমি যেতে চাইবে। 30 मिनट्स के लिए टाइम मशीन आपको मिल रहा है।
30 मिनट्स के लिए मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। मैंने इलाहाबाद के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरा जन्म भी इलाहाबाद में हुआ है। हालांकि उसके बाद मैंने कभी इलाहाबाद देखा नहीं है। इलाहाबाद में एक ही बार गया था, एक दिन के लिए। मेरा नाटक का शो था 2017 साल, 2018 या 17 में। डीमोनेटाइजेशन कौन सा साल में हुआ था? उसी दिन। सर तो 2 साल हो गए, 2 से 3 था। 2 साल हो गए, 2018 का 17 नवंबर शायद। तो अनाउंस जिस दिन बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन था, मेरे पास पैसा नहीं था। क्योंकि पैसे नहीं थे, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट इवनिंग में हुआ था होने और वाला। अगले नहीं हो गया था अनाउंस। मुझे मालूम नहीं था कि अनाउंसमेंट हो गया है, क्योंकि रात को मैं जब एटीएम से पैसा उठाने निकला, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरा फ्लाइट था वाराणसी से इलाहाबाद बाई कार जाना था। 18 को मेरा शो था इलाहाबाद में और दिस वाज 17th इवनिंग। तो इलाहाबाद में गया था एक ही दिन के लिए। पैसा था नहीं। 100 रुपया था मेरे पॉकेट में, वो भी उधारी में लिया था किसी एक दोस्त से। तो इस हालत में इलाहाबाद पहुंचा था। तो मुझे बहुत इच्छा है मैं इलाहाबाद जाऊं, उसको देखूं जहां पर मैं हुआ था। मुझे मालूम है, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। ओके। और दुर्गा षष्ठी था उस दिन, महाषष्ठी की इवनिंग थी। जी। তো আমার খুব ইচ্ছে সেই সন্ধ্যাবেলাটায় আমি যাই। সেদিনকে কি হচ্ছিল আমি শুনেছিলাম, আমার চণ্ডী পাঠ হচ্ছিল। আমার মা চণ্ডী পাঠ अच्छा। শুনছিল। চণ্ডী পাঠ শুনতে শুনতে মায়ের লেবার আসে, মাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় 8টা কততে, 8:30 পৌনে 9টা নাগাদ আমি হই। তো আমার না ভীষণ ইচ্ছে সেইটা আমি দেখি একবার, ওই দিনটায় ওই সন্ধ্যাবেলাটায় আমি দেখি। क्या बात। হ্যাঁ, সুপার সুপার। এলাহাবাদ ওকে। ঘুরে আসার আমার খুব ইচ্ছে। বাহ, সুপার। আচ্ছা দাদা, সুদীপ দা, এবার তোমার থেকে জানতে চাইবো, একটু ছোট্ট করে একটু বলো প্লিজ। এখন তোমার ফ্যান্সরা সবাই ওয়ার্ল্ড মে जो अभी हुआ है इसके बाद সবাই অনেকজন লো ফিল করছে। পজিটিভ থাকার জন্য এখন কি করা উচিত? সুদীপ দা, তুমি কি বলবে? আস্তে আস্তে সবকিছু খুলে দেখো যাচ্ছে, আমরা সবাই জানি, কিন্তু কি করা উচিত? হ্যাঁ, দেখো, পজিটিভ থাকার জন্য একটাই উপায় আছে। ডু নট কিপ এনি এক্সপেকটেশন ফ্রম লাইফ। হুম। লিভ সিম্পলি, থিঙ্ক সিম্পলি। ডু নট हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ। हम लोगों का विशेस एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ गया है। जी सिंपलेस्ट जी ऑफ जी। थिंग, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मुझे वो वाला कपड़ा चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मुझे ये वाला चैलेंज करना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं तो नहीं होगा। मुझे एग्जाम्स में 100% मार्क्स लाना है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होता है बॉस। जी, बिल्कुल सही कहा। आफ्टर ऑल, दिस लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ। इट्स अ वेरी सिंपल जर्नी। मस्त जियो। जो भी कुछ हुआ है अपने काम में, तुम जियोगे, हजारों साल जी सकते हो, लेकिन कुछ लेकर नहीं जा पाओगे। करेक्ट। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे 7 पुरखों बाद क्या खाएगा वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। आज तक किसी का पुरखों पर पीढ़ी एक तरह से नहीं जिया है। तुम अरबोपति हो सकते हो, तुम्हारे बच्चे अरबोपति नहीं हो सकते। करेक्ट कि करेक्ट। उनके बच्चे अरबोपति नहीं हो सकते। और जो तुमने अरबों जो कमाया है वो तुम लेकर नहीं जा पाओगे बॉस। मस्त जियो, वेरी ट्रू। अपना जिंदगी जियो और बच्चों को बच्चों की तरह जीने दो। वो लोग अपना जिंदगी बना लेंगे। 18 साल तक उनकी पढ़ाई लिखाई जब तक चलता रहेगा, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी वो लोग जी लेंगे, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेस बना दो जिसके ऊपर खड़ा होगा, खुद मेहनत करके जिए। जब तक मेहनत नहीं करेगा वो लोग नहीं जी पाएगा। मेहनत करना पड़ेगा। तो लाइफ इज वेरी सिंपल। हम लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बढ़ जाता है, जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग। अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो तो जो भी तुम्हें मिलेगा वो बोनस की तरह आएगा। बहुत अच्छा लगेगा। पूजा बोनस मिलता है ना, बिल्कुल। और ऊपर वाला है, ही विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। यू डोंट हैव टू आस्क इट फ्रॉम देम, फ्रॉम द ग्रेट वन। ही नोज वो आपको क्या चाहिए, वो ऊपर वाला
ठीक दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल, आपको मेहनत आखिरी करना है, सवाल में पूछूंगा। आपको हाँ हाँ ऑनेस्ट होना है खुद। बिल्कुल। ये जो शरीर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जिस्टेंस, आपका ईश्वर का एग्जिस्टेंस, आपका सब कुछ इस शरीर के अंदर है। करेक्ट। ये शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं है शरीर के बाहर। तो इस शरीर को रेस्पेक्ट करो। दिमाग, सोच, मन, चेतना, एवरीथिंग, मसल्स, वॉट, ये शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तपस्या, शरीर के बिना कुछ नहीं है, किसी चीज की भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको अच्छा रखो, खुश रखो। खुश रखो मतलब शांति में रखो, इसको अब्यूज मत करो। ट्रू, একদম ঠিক, একদম ঠিক দাদা। ওকে, ডিরেক্টর শেখর ঘোষের সিনেমার ফার্স্ট থ্রিলার মুভির আমরা ফার্স্ট লুকটা দেখলাম দাদা। ডিজিটালি ওটাকে প্রমোট করা হচ্ছে, তুমিও ফেসবুকে প্রমোট করলে। कुछ अगर बताते जाएं इस मूवी के बारे में, একটু যদি বলেন। इट्स अ थ्रिलर मूवी। ऑल ऑफ ए सडन मेरे पास रात को एक फोन आया था, रात के करीब 12 बजे करीब फोन आया था। मैं एक्चुअली मेरा वर्कआउट रात को करता हूँ कि सब लोग सो जाते हैं, तो मैं शांति से अपना वर्कआउट घर ही में आराम करता हूँ। मैं ज्यादा कर फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो उस समय कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है। तो इसी समय मेरे पास एक फोन आया। एक लेडी थी, चांदनी दास, उन्होंने फोन किया। प्रोडक्शन हाउस शुगर कोटेड फिल्म्स से मैं बोल रहा हूँ, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আমি তোমার সঙ্গে কাজ করতে চাই। আমি নেট থেকে তোমার ছবি পেয়ে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমি বললাম কোন ছবিটা দেখেছো তোমরা? বলে আমার একটা ছবি পাঠালো যেটা আমার একদম পছন্দ নয় আর কি। ওকে, আমি বললাম আচ্ছা। আমার চেহারা কিন্তু পাল্টে গেছে। বলে আমি পাল্টা আরেকটা ছবি পাঠালাম রিসেন্ট, সেটাও পছন্দ হলো। देन दिस मैन गेट्स कनेक्टेड, शेखर घोष, और हम लोग करीब 1.5 घंटे बातें की, ऐसी बेफजूल का ऐसी बातें करते रहे। लाइफ फिलोसफी, लॉकडाउन एंड व्हाट नॉट। एंड देन ही सेड কি তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো সুদীপ, তোমার সঙ্গে কথা বললাম, তোমার ছবি দেখলাম, এইবারে আমি তোমার ক্যারেক্টার অনুযায়ী আমি স্ক্রিপ্টটা লিখতে পারবো। আমি যতক্ষণ না কথা বলছিলাম ততক্ষণ আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কি লিখবো তোমার জন্য। আচ্ছা, বাহ। And Sohail Khan was born. I was sent the first draft over PDF. I read it, first 10 pages, and I was in love with Sohail Ansari. Sorry, Sohail Ansari. I immediately messaged him that I am in love with Sohail Ansari and let us do it together. And then उसके बाद वो लोग आए कलकत्ता में, हम लोग मिले, बातें की, फिर धीरे धीरे क्रिएट हुआ। वो लोग हमारे साथ बातें करने के बाद और कुछ चेंजेस किए, और उसके बाद सिंडिकेट बना, फिल्म चालू हुआ, एंड मेरा लुक सेट हुआ उसके पहले। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी माई सेल्फ। See, a creator, filmmaking is a creation, you know, it's an artwork. And the creator is like a god, and the creation is like a child. Correct. So it is very important to be a creator. माने ये vision होना बहुत जरूरी है. And I hail the directors. I hail Shekhar Ghosh too. He's a visionary who has a long vision. उसने विजुलाइज किया कि ये बंदा को ऐसे दिख सकता है। एंड ट्रस्ट मी, माय फोटोशूट, वो पिक्चर जब मैंने सोशल मीडिया में डाला, इट बिकेम अ रेंज। ठीक है, सोहेल अंसारी भी ऐसे फिल्म्स जो कहानी है, कहानी हम लोग सुने हुए हैं। सिंडिकेट मतलब आजकल का जमाने में जो जो होता रहता है, जो सिस्टम है, एंटायर सिस्टम को लेके फिल्म है, थ्रिलर है। एंटायर स्टोरी तो मैं अभी बता नहीं सकता, बट इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, इट्स अ psychological thriller also. Lot of crisis and coming out of crisis. Everyone has their own characteristics. सोहेल अंसारी का भाई अपना चरित्र है। ये सोहेल अंसारी अपना फैमिली को बहुत चाहता है। इज अ वेरी पैशनेट मैन, वेरी कॉम्पैशनेट मैन। लेकिन और वो जानता है वो अंडर ग्राउंड का काम करता है, वो इलीगल काम करता है, और वो चाहता है कि वो मेन स्ट्रीम में आए, उसके बच्चे सेफ रहे, उसकी फैमिली सेफ रहे। वो चाहता है, वो बाबू बनना चाहता है,
वो भाई से बाबू बनना चाहता है। तो इसका अपना एक क्राइसिस है। वो बात बात में लोगों को मार नहीं देता है, उसमें एक दिमाग, एक दिल काम करता है ये बंदा जी। इस तरह का एक चरित्र है। और आजकल का सिस्टम को लेके फिल्म है, तो इसका ट्रीटमेंट, इट वाज अ वेरी इजीली शॉर्ट फिल्म। हम लोग मतलब जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था शेखर का, वेरी वेरी इजी गोइंग, यू नेवर फेल्ट प्रेशराइज कि भाई कुछ ऐसा करना है, बॉम्बे वाले हैं, पता नहीं इनको कैसा लगेगा। नहीं, हम लोग गए, एकदम पिकनिक का माहौल था, बातें करते रहे, अड्डा मारते रहे, उसके बीच बीच में शॉट्स देते रहे, और सुनने में आया कि शॉट्स वर अमेजिंग। मैंने एडिट पार्ट नहीं देखा, डबिंग अभी बाकी है। तो कल भी शेखर मुझे मैसेज किया था कि सुदीप, यू लुकिंग अमेजिंग, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट इज इट व्हाट वी हैव। सुपर्ब। तो कुछ बताना चाहेंगे? ये मूवी तो है ही, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आखिरी सवाल। कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा है, बातें चल रही है, वेब सीरीज का कुछ बातें चल रही हैं, होइचोई में फिल्मों का भी बात चल रहा है। मेरे इस बीच में সুমন মৈত্রর একটা ছবি করলাম, সেই ছবিটা এখনো বাকি আছে। শঙ্খ ঘোষের একটা ছবি করার কথা আছে। আমার সিরিয়াল শ্রীময়ী তোমরা দেখেছো, শ্রীময়ী সিরিয়াল, ইটস আ ভেরি পপুলার সিরিয়াল and it has given me immense popularity, and আরো একবার আমাকে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে আরো একবার। হ্যাঁ, তো এরকম অনেকগুলো, ম্যাজিকওয়ালা বলে একটা ছবি হওয়ার কথা আছে এ মাসেই শুটিং। খুব কম বাজেটের একটা ছেলে সেই প্রডিউস করার তার খুব ইচ্ছে, খুব মিষ্টি একটা গল্প। আমি জানি না, খুব কম বাজেটের ছবিটা খুব কষ্ট করে তৈরি করবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ওটা। আর শঙ্খ ঘোষের একটা ছবি হওয়ার কথা আছে জানুয়ারি মাসে, ওটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম। এইরকম কাজ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক হচ্ছে। একটা নতুন নন ফিকশন শো আসছে যেটা আমি প্রেজেন্ট করছি, মোস্ট প্রবাবলি 12 তারিখ থেকে 11 তারিখ থেকে কি 12 তারিখ থেকে শুরু হবে। সেটা হচ্ছে আকাশ 8-এ পুলিশ ফাইল স্পেশাল, যেটা আমি প্রেজেন্ট করছি। মানে সুদীপ মুখার্জি পুলিশ ফাইল স্পেশাল। তো এরকম কাজ হওয়ার কথা আছে। एकदम এরকমই ব্যস্ত থাকো दादा, और ऐसे ही आपके साथ बातें होते रहे। चैलेंजिंग रोल्स में हम आपको हमेशा देखते आए हैं, और इसी तरह से आप हमें अच्छे अच्छे एंटरटेन करते रहिए चैलेंजिंग रोल्स करके। सुदीप दा, थैंक यू सो मच। दारुण आड्डा हुए, बहुत सारी चीजें हमने बातें की, और पॉजिटिविटी लेकर हमने बातें की, और बहुत आप पॉजिटिव हैं, और इसी तरह से आप पॉजिटिव रहिए, फिट रहिए, स्माइल करते रहिए, एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच सुदीप दा, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू अनिमेश, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड you are the best too. अरे थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। हमारे सॉन्ग के नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुपर एक्टर सुदीप मुखर्जी, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। यही हमारा शो है, पॉजिटिविटी लाने की हम कोशिश करते हैं, और पॉजिटिविटी लाने की कोशिश हमने की आज के भी शो में, रविवार की शाम सितारों के नाम। थैंक यू सो मच सुदीप दा। नेक्स्ट वीक एक और सितारा के साथ मुलाकात यहीं पर होगी, यानी कि 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू एंड गुड नाइट।